آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عسکری قیادت نے دو ٹوک بتا دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عسکری قیادت نے دو ٹوک بتا دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں انتخابات میں فوجی معاونت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت تفویض کردہ ہدایت کے مطابق فرائض سر انجام دے گی۔ کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد نہیں کرنے دیں گے۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ کور کمانڈرز کا واضح پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ فورم نے عزم ظاہر کیا کہ پاک فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت تفویض کردہ ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی۔ فورم نے عزم کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ کانفرنس میں مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکاء سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا، پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ ملکی خود مختاری، قومی عزت اور پاکستانی عوام کی امنگوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے۔ کانفرنس میں بھارت کی جانب سے ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی اور بھارت کی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی گھناؤنی مہم کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ معاملے پر بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے فلسطین میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کی فوری ضرورت کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے تنازع کے انتہائی منفی اثرات اور خطے میں پھیلاؤ کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ ماہر قومی سلامتی امور محمد علی کہتے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس میں ایران کے ساتھ جو کرائسس پیش آئے اور ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہوا، اس معاملے پر کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا گیا۔ کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں پرامن تعلقات چاہتا ہے، اپنی عزت و وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس پاکستان کا جو ریسنٹ کرائسس ہوا ہے ایران کے ساتھ اور اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ کا جو پاکستان کا دورہ تھا، اس کے بعد پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہے۔ تو یقیناً پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تمام کور کمانڈرز کو اس میں اعتماد میں لیا۔ پاکستان جو ہے وہ تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر خیر سگالی کے پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ البتہ ہم اپنی خود مختاری، سالمیت اور عزت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ایک بہت اہم پیغام ہے۔ دوسرا پیغام جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں پاکستان فوج جو ہے پاکستان کی جمہوریت، جمہوری نظام کے ساتھ بالکل اسٹرانگلی کھڑی ہوئی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عام انتخابات کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس نے کہا، صاف شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے۔ جہاں الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی فورسز کو ضرورت پڑے گی وہاں مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ جو ہے اپنا الیکشنز ہیں، چونکہ ابھی بالکل ایک ہفتہ رہ گیا اور اس میں آئی تھنک ایک تشورش دی گئی ہے کہ ملٹری کی طرف سے، پاک آرمی کی طرف سے پوری سپورٹ دی جائے گی الیکشن کمیشن کو، اور جس میں ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ بھی رکھنی ہے الیکشن کے لیے۔ اور پھر جو بھی ایسی دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن یا سیکورٹی کے ایشوز ہیں وہاں پہ فوج جس طریقے سے الیکشن کمیشن چاہے گا وہ ہیلپ کرے گی۔ سو ایک لحاظ سے ڈیموکریسی کی جو آپ کے لیے کنٹینیوٹی ہے کو اسٹرینتھن کرنے کی بات چیت ہوئی ہے۔ ایک انتہائی اہم ٹاپک جو کہ اب سے 8 دنوں کے بعد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں، اس کا جو مینڈیٹ جو ملا ہے چیف آرمی اسٹاف کی زیر قیادت دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اس کا تمام حالات کا جائزہ لیا گیا۔ تمام کور کمانڈرز کو انسٹرکشنز دی گئیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اپنے جو ان کے ذمہ داری کے علاقے ہیں وہاں پہ صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کو انشور کرنے کے لیے اپنی تیاریاں کریں، اور کسی صورت بھی کسی عنصر کو بھی، کسی ایلیمنٹ کو ایسی اجازت نہ دی جائے کہ وہ الیکشن کے پروسیس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں، یا الیکشن کی جو ریپیوٹ ہے یا کریڈیبلٹی اس کو چیلنج کیا جا سکے کسی فورم کے اوپر بھی۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों ने हमलों को नाकाम बनाया। नतीजे में दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ 30 जनवरी को किए गए ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। आज सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 12 दहशतगर्द मारे गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, कल भी यही बात हो रही थी कि इस वक्त एक क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है और क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक आज मजीद 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और इस तरह से क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 21 हो गई है और दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके के अंदर इस वक्त भी ये क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और ये उस वक्त ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को या उनके हमदर्दों को अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जा सकता। और इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाज़ेह किया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक और अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जो क्लियरेंस ऑपरेशन है ये जारी रहेगा और इसको हर हाल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा ताकि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को सिक्योरिटी फराहम की जा सके। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बाजोड़ में कत्ल किए गए रेहान ज़ेब खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे। बाजोड़ में पीटीआई ने गुलदाद खान को उम्मीदवार नामजद रखा था, लेकिन कत्ल के बाद पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से रेहान ज़ेब को टिकट होल्डर जाहिर कर दिया गया। बाजौड़ में इंतखाबी उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान का कत्ल, पीटीआई का झूठ सामने आ गया। ऑफिशियल अकाउंट से कत्ल के फौरी बाद ट्वीट किया गया कि पीटीआई के उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया है। हकीकत ये है कि रेहान ज़ेब खान पीटीआई के सरगर्म कारकुन जरूर थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली नशिस्त पर गुल जफर खान को नामजद किया था, जिसके बाद रेहान ज़ेब खान आजाद हैसियत में कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे। रेहान ज़ेब इंतखाबी मुहिम में बैनर्स पर बानी पीटीआई की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे थे। रेहान ज़ेब खान के साथियों ने कत्ल के बाद गुलदाद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी ऐलान कर दिया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान इद्दत निकाह केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त गुजार और गवाहों के बयानात पढ़े। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया कि इस मामले पर पहली कंप्लेंट कब दायर की गई थी। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कंप्लेंट निकाह के 5 साल और 11 माह बाद नवंबर 2023 में दायर की गई। खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बास ने कहा कि शरीयत के मुताबिक इद्दत का वक्त 90 दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाल सुनने के बाद इद्दत में निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी को अडियाला से बनी गाला मुंतकिल करने की हतमी मंजूरी, बनी गाला हाउस को सब जेल करार दे दिया गया। बनी गाला में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनी गाला रवाना कर दिया गया है। बुशरा बीबी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुंतकिल करने का फैसला किया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद, 787 मिलियन जुर्माना आयद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आलिजा से। जी आलिजा। देखिए, बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम को सिक्योरिटी सूरत हाल के सिक्योरिटी थ्रेट्स के पेश नज़र अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अडियाला जेल के में आज उनको तोशाखाना केस में 14 साल कैद सुनाई गई थी और उनको 10 साल के लिए किसी भी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया था। तो अब उनकी शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर दिया गया है। अडियाला जेल के अंदर मोहम्मद आलिजा। तो दूसरी जानिब तोशाखाना चोरी साबित, बानी पीटीआई तोशाखाना चोरी के मुजरिम साबित हो गए हैं। कौमी खजाने में खयानत पर सजा और नाअहली बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। अडियाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। बड़े जुर्म की बड़ी सजा,
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम साबित। इस्तगासा को बड़ी कामयाबी, दिफाई टीम मुकम्मल नाकाम। तोशाखाना केस में 14 साल की सजा बमुशक्कत। मुलजिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान फैसला सुनाया। मुलजिमान को 10 साल के लिए किसी भी अवामी अहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया। दौरान समाअत बानी पीटीआई अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद बशीर ने सवाल किया, आपने 342 का बयान जमा कराया है? जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, हाजिरी के लिए आया हूँ, बयान तैयार कर लिया है, वकला के आने पर जमा करवाऊंगा। जज ने कहा, जाएं फौरी अपना बयान लाएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, बाद में रद्द बदल भी कर लेंगे। बानी पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। बानी पीटीआई वापस नहीं आए। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने कहा, वो नहीं आ रहे, कह रहे हैं वकला जब तक नहीं आते अदालत नहीं आऊंगा। जज ने हिदायत की वो केस टाइटल की आवाज लगाए। पुकार के बावजूद बानी पीटीआई अदालत नहीं आए। अदालत ने फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद इन्हें लाहौर की रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में अदालत ने हक जिरा खत्म करने का तहरीरी फैसला जारी किया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया, सरदार लतीफ खोसा कुछ समातों पर पेश हुए। वकला सफाई हीलो बहानों से जिरा नहीं कर रहे थे। मुलजमान वकला के जरिए बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलजमान का ये तर्ज अमल दानिस्ता है। गवाह कई घंटे जेल में इंतजार करते रहते हैं। मुलजमान को गवाहान पर जिरा करने का मजीद मौका नहीं दिया जा सकता। मुलजमान का हक जिरा खत्म किया जा रहा है। यही फैसला मुतवक्के था। सजा का लदम करार देने के लिए अपील दायर करेंगे। बानी पीटीआई के वकील अली जफर के तोशाखाना फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई शक नहीं, सजा जल्द खत्म हो जाए। इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। और उम्मीद ये है कि इतना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इतना मिसट्रायल है, उतना ऑब्वियस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द, सजा भी और कन्विक्शन भी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे इंतखाबात 2024 के हवाले से। तो बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मकाफात अमल इस दुनिया में देखेंगे। इन दहशतगर्दों को देख लूंगा। शोहदा के खून का सौदा करने वाला बिलावल भुट्टो जरदारी को जरदारी का मालाकंड में जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों ने फंसाया। अब ये लोग कहेंगे हम बानी पीटीआई के सफीर हैं, हमें वोट दें। ये लोग मुंतखब होकर भी बानी पीटीआई को पार्लियामान में धोखा देंगे। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बल्कि बेइज्जती कर रही है। तो एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। इनकी फैसलों की वजह से आज एक बार फिर वो सर उठ रहा है, मगर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस सर को काटूंगा। कौन होता है खान साहब कि वो शोदा के खून पे सौदा करके खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के सफीर हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। नून लीग अब तो वोट का इज्जत नहीं, वोट का बेइज्जती करवा रहा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहा, इल्जामात लगाने वालों के इल्जाम उन पर सच साबित हो गए। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा किसी जज पर नहीं, अल्लाह ताला पर छोड़ा। किसी की तकलीफ पर खुश नहीं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश ही नहीं, आज भी जितना रिलीफ उनको मिल रहा है वो नून लीग ने आज तक नहीं देखा। शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ।
नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है और अल्लाह करे कि जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इनको ना सहना पड़े, कि ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, ये इसको शर फैलाने के लिए लाया गया था पाकिस्तान में। तोशाखाना केस के फैसले पर सियासी शख्सियात ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि रियासत मदीना के नाम पर करप्शन की गई, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, वजारत उज़्मा के ओहदे को बेतौकीर किया गया, जो चोरी करेगा वो सज़ा भुगतेगा। अभी फॉरेन फंडिंग और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस भी है। बानी पीटीआई ने भारत से फंडिंग ली के तौर पे, एक व्यापार के तौर पे इसको निजाम बना के चलाया गया कि जितने भी तहाइफ आते थे उनको औने पौने सरकारी कागजों में बेचा जाता था और असल काम पीछे से ये होता था कि उनकी अरबों रुपए की जो कीमत थी वो कहीं और से वसूल की जाती थी। गजब खुदा का 3 अरब रुपया आप हड़प कर गए सिर्फ एक ग्राफ के सेट का। अभी बाकी कहानी तो आनी है, बाकी तहाइफ तो अभी आने हैं सामने जिन पे केस चल रहा है आपका। चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा, तो ये अपने किए की सजा भुगतने हैं, कभी इदारों पर, कभी मुसल्लह अफवाज के ऊपर, उनके घरों पर जत्थों की सूरत पे हमला करते हैं। कभी हमने नहीं सजाएं भुगतनी, हमने तो कभी नहीं बोला। पीपुल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है और हम किसी भी वजीर आजम की सजा में या किसी को तकलीफ हो उसमें हम खुश नहीं होते और ना ही हमें कोई खुशी है कि उनकी अहलिया जो है, जो कि खातून है, उनको भी सजा हुई है। इख्तिलाफात का खात्मा करके आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, माजी में झांककर सबक हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ की लाहौर में डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा हालात को दुरुस्त जानिब मोड़ा जाए तो नुकसान का अजाला हो सकता है। 8 फरवरी को अवाम वोट से अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बात है उनसे बालातर होकर हम यकसुई के साथ इख्तिलाफात का खात्मा करके आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। माजी में झांक कर, माजी से सबक हासिल करके अगर हम आगे बढ़ने का तैयार करें, हालात को सही रुख की तरफ मोड़ा जाए, बहुत थोड़े अरसे में माजी के जो नुकसानात हैं उनकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्तों में अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल होगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के जरिए इस कौम की तकदीर का फैसला करेंगे। और अब जिक्र करेंगे इंतखाबात 2024 का। तो कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मजबूत जमहूरियत को फलता फूलता देख रहे हैं, ये शहर हकीकी वारिसों के हवाले होने जा रहा है। कराची अब पलट कर वोटों के जरिए वार करने वाला है। हमारे शहीद के लहू से हमारे दिल दुखे हुए हैं। रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि हमारा मुकाबला करप्ट तरीन लोगों से है। 8 फरवरी को वोट के जरिए एमक्यूएम का तफसीली जवाब आ जाएगा। गलत फहमियाँ फैलाकर एक बार फिर हमारे इत्तेहाद में रुकावट डाल, मैं बड़ी वजह से कह सकता हूं एमक्यूएम एक रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, अपने दीन से मोहब्बत करने वाली जमात है। कराची अब पलट के वोटों के जरिए जो वार करने वाला है, हमारे शहीद के लहू से हमारे दिल दुखे में। पूरे सिंध में भी जवाब देना पड़ेगा हर उम्मीदवार को। हुक्मरान जो थे, जो रहे 15 बरस, तो उन्होंने काम क्या किया है? इलेक्शन जीतने की बात है, इलेक्शन तो वैसे ही तकरीबन वन साइडेड हो गया है। कभी धौंस, धांधली और जलाओ घिराव की सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी का कराची सेंट्रल के नाखुशगवार वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह बोले कराची का अमन बमुश्किल बहाल हुआ, पहल कर रहे हैं, आए मिलकर मसला हल करें। सईद गनी का कहना था कि वाक़े को बुनियाद बनाकर माहौल ख़राब किया जा रहा है। लोग पहल कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी कह रही है कि आए मिलकर इस बात को रोकें और जो भी मुजरिम है, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सजा जरूर मिलनी चाहिए। और ये तब होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होगी, तो किसी को भी उस पर इफ एंड बट्स नहीं आएंगे। हमारा कब्जा यहाँ के रहने वालों के दिलों पे तो हो सकता है, बाकी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी कोई भी माजी का नहीं रहा कि हमने कोई इस तरह की चीज़ें की हों, धौंस धांधली की बात की हो। हाँ, हमने यहाँ खिदमत ज़रूर की है, अगर कब्जा किया है तो लोगों के दिलों पे ज़रूर किया है। जो नाज़माबाद में वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि हमारे पार्टी के बैनर्स, झंडे, जो पोस्टर्स हैं
को उतारे जा रहे हैं और हमारे कैंडिडेट्स को कैंपेन करने से रोका जा रहा है। लेकिन उस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो सूरत हाल पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पैदा की जा रही है, ये हमारे MQM के दोस्तों को भी समझना चाहिए कि ये अगर वो एक सियासी जमात के तौर पर काम करना चाहते हैं तो ये उनके हक में भी बेहतर नहीं है। अभी आपको अहम खबर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करने के लिए कागज़ की दस्तयाबी की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद, बताइए। जी देखिए, बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक बमुश्किल जो खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स का हामिल कागज़ है वो बमुश्किल पूरा होगा बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए। लेकिन अगर अब मजीद किसी हलके में दोबारा छपाई का कोई हुक्म आता है, खासकर अदलिया की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में होगा। कागज़ जो है इजाफी ख़त्म हो चुका है और खदशा है, ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसे हलकों में इंतखाबी अमल मुलतवी होने का भी खदशा है। और इसी मामले पर आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो सके, सियासत में ताकत के लिए नहीं खिदमत के लिए आए हैं। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि 8 फरवरी को सब औकाफ को वोट डालें। नौजवानों को कहता हूं कि ये इलेक्शन आपकी तकदीर का फैसला करेगा। मैं सियासत ताकत वास्ते नहीं आया कि मेरे को कुछ बहु मिल वैसे या वैसे मैं आया खिदमत कर। मैं सोसाइटी वास्ते हमेशा हाजिर रहता, सारे मसले मसाइल हल करना मेरा फ़र्ज़ है। कौन वोट मांगना मैं, क्योंकि वोट में मिल से तो मैं कामयाब थी। मैं इलेक्शन का टाइम आया ना कि मेरी ना है लिया शुक्र खत्म हो गई। मैं इलेक्शन की तैयारी करने पे हम प्लाट नहीं खाली बाग कहना मैं फैसला किया कि मैं इतना बने आमना कॉलेज इंशाल्लाह कॉलेज का संगी बुनियाद रखे था। मेरी कोई काबिलियत क्या नहीं, ये सोच अगर मेरे दिमाग में है ना ये अल्लाह ताला पाती है, मेरे को क्या पता है सारी चीज़ों में। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं फैसला करने के बाद पूरा मनसूबाबंदी की खड़ा। सियासी जमातें और मुखालफीन इक़्तिदार की लालच में हैं। PP ने गरीब मजदूर की सियासत की है। आसिफा भुट्टो का हैदराबाद में कारकुनान से खिताब, कहा 8 फरवरी को ख़वातीन, मर्द और बुजुर्ग सब बाहर निकलें और तीर को वोट दें। दूसरी सियासी जमातें सिर्फ अमीरों को अमीर करना चाहते हैं और गरीबों को और गरीब। उनको सिर्फ इक़्तिदार की लालच है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातों सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। मेरे भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये वादा करता है कि जब इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा उसका भी पहला एजेंडा हमेशा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपका हुकूक के लिए लड़ सके। एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज के दौरान किसी शख्स को मारना या नुकसान पहुंचाना हरगिज़ जायज़ नहीं और गैर शरई है। मुसल्लह कार्रवाइयाँ मुतफ़क़ा फ़तवे और पैगाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास का एलामिया जारी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के 235वें इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया हुकूक के लिए एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाना गैर शरई है। कुछ अनासिर की मुसल्लह कार्रवाइयाँ उलमा के मुत्तफ़िका फतवे और पैगाम पाकिस्तान के एलामिया के खिलाफ हैं। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है और खुदकुश हमले शरीयत के मनाफी हैं। एलामिया में कहा गया इस्लामी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो अपनी हदूद मुमलिकत में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करे। कौंसिल ने फैज़ाबाद धरना कमीशन के सवालात के जवाब में कह दिया कि किसी मुसलमान को काफिर करार देना निहायत हसास मामला है। इसी तरह किसी शख्स के कौल और फ़ेल की वजह से इसे काफिर करार देना निहायत ही एहतियात का मतकाजी है। आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना अदालत का काम है। खबर शामिल करेंगे बाजोड़ से, जहां नामालूम अफराद ने आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को कत्ल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फायरिंग और दस्ती बम हमले। कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के वार, दस्ती बम हमले और फायरिंग के वाकयात। बाजोड़ गोलियों से गूंज उठा। नामालूम अफराद ने NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। बलूचिस्तान में एक के बाद एक दस्ती बम हमला। कोयटा में नामालूम मुल्जिमान ने सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर को निशाना बनाया। 5 अफराद जख्मी हो गए। उम्मीदवार अली मदद जद तक महफूज रहे। केच में साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बलेची
जवेदी के घर पर हमला हुआ। 2 दस्ती बम सहन में जोरदार धमाकों के साथ फटे। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिब्बी में मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने ट्रैफिक बूथ पर दस्ती बम फेंका। किला अब्दुल्ला में अवामी नेशनल पार्टी के मकामी रहनुमा के 2 भाई फायरिंग से जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने वाकयात का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब। और महंगाई की बात करें तो गैस की कीमत में इजाफा हो गया। बिजली भी महंगी करने की मंजूरी मिल गई। नेपरा ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ओगरा ने माह फरवरी के लिए LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगे बढ़ेंगे और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में इस्राएली फ़ौज के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। अल अमल अस्पताल पर फायरिंग और गोलाबारी से एक खातून समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में सेहोनी हमलों में मज़ीद 114 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इसराइली फिज़ाइया की बमबारी, सेहोनी फौज की ज़्यादतियाँ और कार्रवाइयाँ। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई में मकबूजा मगरबी किनारे के अस्कर परहकुज़ीन कैंप से दर्जनों गिरफ्तारियाँ की गई हैं। बैतुल अलहम से 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। कलकीलिया और जनीन कैंपों से भी 3 अफराद कैदी बना लिए गए। इसराइली फौज समंदरी पानी को पंपिंग मशीनों से खींच कर हमास की सुरंगों को भरने लगा। समंदरी पानी भरने से सेरे ज़मीन नीचे पाने के ज़खायर मुतासर होने लगे। इसराइल से मिलने वाली 100 नामालूम फ़लस्तीनियों की लाशों को इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया। गजा में फ़लस्तीनी भूख के मारे बेहाल हैं। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के हमले भी जारी हैं। इसराइल ने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। ज़मीनी कार्रवाई में अब तक 218 इसराइली फौजी मारे गए हैं, 1283 जख्मी हुए हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी, कहा है कि वो गजा से अपनी फौज नहीं निकालेंगे, न ही हजारों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने गजा शहर से मज़ीद इनखला की धमकी भी दी है, जहाँ 88,000 फ़लस्तीनी मुकीम हैं। और मौसम की बात की जाए तो मलका कोहसार मरी में मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए मॉल रूट का रुख कर लिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं मरी से हमारे नुमाइंदे शाहिद मुमताज़ अब्बासी से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कोसार मरी के माल रोड के ऊपर। अगर बात करें तो मरी के अंदर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। सयाहों की एक खासी तादाद है जो मरी के माल रोड के ऊपर मरी में होने वाली बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यहाँ पे सयाह भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम मुल्तान से एंजॉय करने आए हैं, बहुत अच्छा मूड है, बड़े बारिश हो रही है। हम लाहौर से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय करने का बहुत मज़ा आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम अपनी गैदरिंग के साथ आया हूँ, अक्सर फैमिली के साथ आता हूँ, मगर गैदरिंग के साथ बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। ये जैसा कि सयाहों का कहना है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे मरी इंतज़ामिया की तो इस वक्त इंतज़ामिया भी मरी के अंदर हाई और मरी में जो है सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि अपनी गलतियों से सीखता हूं, मैं जहां खड़ा हूं उससे मुतमईन नहीं हूं, अभी और भी मनाजिल हैं। गैर मुल्की क्रिकेट वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि BPL में क्वालिटी स्पिनर्स हैं और विकेट्स आसान नहीं। तजुर्बेकार खिलाड़ी को अंदाज़ा होता है कि दबाव में कैसे संभालना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कवर ड्राइव मेरी स्ट्रेंथ है, ये शॉट खेल कर मेरे एतमाद में इजाफा होता है। पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा ने अमन की अहमियत उजागर करने के लिए 2 रोज़ा मेले का इनेकाद किया। अमन मेले में मुख्तलिफ सकाफ़तों और सरगर्मियों के स्टॉल्स लगाए गए। पेशावर यूनिवर्सिटी में सजा अमन मेला, मुख्तलिफ सकाफतों, खेलों और खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए। प्रोग्राम का मकसद तफरीह के साथ साथ अमन की अहमियत को उजागर करना था। अभी हमारा एग्जाम हुआ है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा हुआ है, हमें रिफ्रेशमेंट मिली है और एक अच्छा माहौल है तो फ़ायदा बहुत देती है। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और हम इसलिए आए हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं सर। पीस हमारे इस इवेंट से ये बताता है कि हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ और गुड वे में, गुड बिहेवियर में हम अच्छे तरीके से लोगों के साथ बातचीत करते हैं। तो दिस इज़ ऑल पीस। ये जो इवेंट हमने अरेंज किया IR डिपार्टमेंट में पेशावर यूनिवर्सिटी ने, ये हमने इसलिए अरेंज भी किया है कि हमारा जो टीवी के नामवर अदाकारा इशरत हाशमी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।